السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میری بات ہوئی ہے کئی دیوبندی سے، اور پھر اس کے بعد میں ہم نے ایک ان کے ادارے میں لگایا، کسی ادارے میں پڑھا رہے ہیں، ان کے کوئی عالم ہے بڑے، تو ابھی آپ آگے آڈیو سنیں گے۔ جیسے کہ میری کچھ بات ہوئی ایک بدھسٹ سے، تو جب میں نے بات کیا تو سورہ مائدہ آیت نمبر 55 نمبر جو ہے، آیت نمبر 55 ہے، جو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ جیسے عام مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ تمہارا مددگار اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت سے ہم لوگ عقیدہ جو بنائے ہوئے ہیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ زندہ ہیں یا انتقال کر جائے، وہ لوگ ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو یہ تین کیٹیگریاں، اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بدھسٹ کا جو ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ بھائی اگر یہ آیت زندوں کے لیے ہے تو زندہ ہم لوگ بھی ہیں، تو ہم لوگ بھی تو مدد کرتے ہیں، تو ہمارا ذکر اس میں کیوں نہیں ہے؟ جبکہ ہم لوگ بھی کسی کا ہیلپ کرتے ہیں۔ اگر دوست کا معنی لے لیا جائے تو دوستی بھی ہماری ہے، اور ہم لوگ دوستی اچھی طرح سے رکھتے بھی ہیں، سب تمام چیزیں مطلب۔ تو میں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور تمام جو سلف صالحین سے عقیدہ ثابت ہے وہی ہم نے پیش کیا، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ بھائی اس آیت سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے مددگار ہے، چاہے اب وہ زندہ ہوں چاہے وہ انتقال شدہ ہوں۔ ٹھیک ہے، خاص کر اس میں جو انتقال شدہ ہیں جیسے کہ اولیاء انبیاء، ان کا ذکر ہے، یعنی غائب میں جو مدد مانگنے کے تعلق سے ہی یہ آیت خاص کر موجود ہے۔ تو غیب میں جو ہے وہ آپ لوگ مدد نہیں کر سکتے، انتقال کے بعد یعنی مرنے کے بعد آپ لوگ مدد نہیں کر سکتے۔ خاص کر یہ آیت اسی لیے ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے مددگار ہیں، اس آیت سے مراد یہی ہے، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ تو وہ شخص خاموش ہو گیا، ورنہ ہم نے دیوبندیوں کا اور وہابیوں کا عقیدہ اور ان کا ترجمہ جب پیش کیا تو اس نے اعتراض کیا تھا۔ تو جب ہم نے اسی کے تعلق سے ان کے بڑے بڑے علماء کے پاس لگایا فون، تو وہ بھی جواب دینے سے مطلب کتراتے رہے اور ادھر ادھر بھاگتے رہ گئے، مگر وہ ان کا بدھسٹ کے اعتراض کا جواب مطلب ان کے پاس صحیح طرح سے نہیں ہے کہ جو اس کو مطمئن کر لے جائیں۔ ہم نے اس کا ہی سوال ان لوگوں کے سامنے رکھا ہے، یعنی اگر سمجھ لیجئے کہ اگر اولیاء انبیاء مددگار نہیں ہیں، انتقال کے بعد میں اولیاء انبیاء مددگار نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے مددگار نہیں ہے، تو قرآن پر الزام آ رہا ہے ان کے عقیدے کے مطابق۔ آپ آڈیو سن لیں، آگے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو پتہ چلا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ ترجمہ کیا ہے اور جو عقیدہ بیان کیا ہے وہی صحیح ہے، اور یہی سلف صالحین کا بھی جو ہے وہ طریقہ رہا ہے کہ کسی نے بھی آج کے 1450 سال کے اندر کسی نے یہ نہیں کہا کہ غائب میں مدد مانگنا، اگر کسی سے مانگو گے تو شرک ہو جائے گا، یہ غائب والی بات ہی نہیں آپ کو آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ ہم نے اس میں کئی بات بتا دیا ہے، آپ آڈیو سنیں آگے اور شیئر بھی کریں، اور جو ہے کمنٹ باکس میں جو ہے اپنی رائے بھی پیش کریں، حوصلہ افزائی کریں۔ اور جیسے کہ ہم نے ویڈیو نمبر 110 میں بتایا ہے کہ کوئی پریشان حال ہو یا بیمار ہو، علاج کروا رہا ہو، نہ فائدہ پہنچ رہا ہو، کسی بھی قسم کا بھی مرض ہو، ٹھیک ہے نا، وہ میرے پاس فون کر سکتے ہیں، اور خاص کر میرے پاس ضرور فون کریں، اس کے بعد میں علاج اس کا کرواؤں گا، جو بھی ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ کئی لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس آڈیو کو بھی مطلب جو ہے شیئر کیا کریں، لائک کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں، حوصلہ افزائی ضرور کریں، اور بات کرنے کا طریقہ آپ لوگ سیکھیں کہ اس آیت کو جس طرح سے میں نے اس میں بحث کیا ہے اسی طرح سے آپ وہابیوں کے سامنے بحث کریں کہ اس پر الزام آ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت زندوں کے لیے ہے تو زندوں میں تو تمام لوگ مدد کر رہے ہیں، تو ان کا ذکر کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی پر ان سے جواب مانگتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو ہاں جی، جی، کون بات کر رہے ہیں؟ ایان کر کے غالباً، یا کچھ نام ہے ایسے ہی ملتا جلتا، انہوں نے نمبر دیا آپ کا۔ جی ہاں، کون بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم محمد ثاقب بات کر رہے ہیں۔ آپ کون کر رہے ہیں؟ جی، میں علی خان بات کر رہا ہوں، علی خان، کہاں سے؟ یو پی سے، یو پی سے، کون سی جگہ؟ سدھارتھ نگر ضلع میں۔ سدھارتھ نگر ضلع میں۔ جی بولیے، کیا کام ہے ہم سے؟ یہ جیسے کہ اولیاء انبیاء کو اگر مددگار نہ مانا جائے تو قرآن پر الزام آتا ہے، تو اس کے تعلق سے بات کرنا تھا۔ یہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے نا، جیسے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا،
الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. جی جی، تو اس میں ہے کہ تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہارا مددگار اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں. جی تو اب کافر لوگ اگر یہ کہنے لگیں، جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں یہ زندوں کے لیے ہے کہ جب تک زندہ ہیں تب تک کے لیے آیت ہے، اگر انتقال ہو گئے تو غیب میں جو ہو جائے گا یہ شرک ہو جائے گا. تو کافر لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی مددگار ہیں، تو ہمارا کیوں نہیں نام لیا قرآن میں؟ آپ ایمان نہیں لائے ہو. نہیں، میں پوچھ رہا ہوں اگر کافر لوگ جو میں جیسے ایک بدھسٹ ہے، میں نے ان سے بات کیا تو انہوں نے یہ چیز کہا کہ بھائی ہم بھی کسی کو کی پھر مدد جو کرتے تم نے ہیں، کافر لوگوں سے بات کسی کیا کو تم نے، کپڑا پہنا دیتے ہیں، کسی کو ارے کھانا کھلا دیتے ہیں، مددگار تو ہم بھی ہیں. تو ہم کو کیوں نہیں کہا گیا صرف تین ہی دنیا کا والے نام لیا؟ دنیا والوں کے لیے بتا رہا ہوں. مطلب آپ بدھسٹ سے مناظرہ ہار جائیں گے بات کریں گے تو ان کو کیا جواب دیں گے آپ؟ مطلب ہم یہاں مناظرہ کر رہے ہیں کیا؟ نہیں، بحث جو بھی کر رہے ہیں آپ تو ان کو ہم نے جواب کیسے دیں گے؟ اس لیے فون کیا آپ نے مناظرے کے لیے، جو بتائیے پہلے. مناظرے کے لیے نہیں کیا ہوں، لیکن آپ اگر ان سے کریں گے، وہ لوگ ایسا اعتراض کریں گے تو آپ کیا جواب دیں گے وہ بتا دیجئے. نہیں یہ بتائیں کہ ہم کوئی مولوی ہے، وہ مفتی ہیں، کچھ ہم تو آپ کو بتائیں کیا؟ مفتی اور مولوی نہیں ہیں تو ابھی آپ آیت پوری پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے جنہوں نے نمبر دیا وہ تو کہہ رہے جس نے یہ سنو، ارے چلو ہیں دیا، چلو مانی آپ کی بات میں کراؤں گا. آپ سنیے، آج کرا رات کر دیجیے نا، لینا ابھی آپ فون 10 چالو بجے رکھیے، قریب، ٹھیک ہے؟ کرا دیجیے، ابھی فون چالو رکھیے نا. 10 بجے قریب، ابھی نہیں کرا سکتا میں، 10 بجے رات میں کر لینا آپ. یار 10 بجے رات کو، یہاں 5 بجے شام ہو جاتی ہے، رات کو 10 بجے بہت زیادہ دیر ہو جائے گا. یوپی میں 5 بجے شام ہو جاتی ہے، ہاں، تو شام ہی تو ہو جاتی ہے، 10 بجے رات ہی تو ہو جاتی ہے. ٹھنڈی کا موسم ہے جو ہے، سمجھ رہے ہیں، تو ابھی کرا دیجئے نا. ابھی کیسے کرا دیجیے؟ ابھی لوگ سب سو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی سو رہے ہوں گے. جی، یہ 12 بجے نماز کا وقت ہونے والا ہے. نماز سے تبھی اٹھیں گے کہ ایسے پہلے سے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے؟ اچھا، یہ 1:18 ہو رہا ہے، جی، تو اذان کا وقت تو ہو گیا. تو اذان کے وقت ہو تو وہ بھی اٹھنے کے وقت ہو گیا ان کا بھی. اذان لگ رہی ہے ابھی. لگاؤ فون، جی لگاؤ نا فون پھر. ارے پڑھائی کا ٹائم ہے ہمارا، یہ پڑھائی کے بعد آپ کی بات ہو جائے گی. اچھا، بات کروا دینا مگر. ہاں ٹھیک ہے، یہ اور فیڈ بیک ڈل جائے 500 روپے. ٹھیک ہے. ہیلو، This call is now being recorded. ہاں نبیم خان. ہاں بولو. ہاں، یہ جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے نا، تو میں نے کسی سے بات کیا جو غیر مسلم ہے، ہاں تو اس میں ہے جو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا دوست، تمہارا مددگار اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں. تو غیر مسلم نے اعتراض کیا، جیسے ہم نے آپ لوگوں کا ترجمہ اور آپ لوگوں کا عقیدہ جب پیش کیا تو اس نے اعتراض کیا. تو اس کا کہنا ہے کہ دیکھیے مددگار ہم بھی ہیں، اور ہمارے بھی کئی دوست ہیں جن کے ہم دوست ہیں. جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، یا کسی غریب کو کھانا پینا ہم لوگ بھی کھلا پلا دیتے ہیں، ہم لوگ بھی ہمدردی رکھتے ہیں، تو ہم لوگ بھی دوست ہیں. تو قرآن نے صرف اتنے ہی لوگوں کا کیوں نام گنایا، حالانکہ ہم لوگ بھی ہیں. لیکن جب ہم نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پیش کیا کہ اس سے مراد جو ہے یہ چاہے انتقال کر جائیں یا زندہ رہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اس سے مراد یہ لوگ، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے، یعنی انتقال شدہ لوگوں کے لیے خاص کر اس میں کہا جا رہا ہے. ہاں، تو وہ مطمئن ہو گیا، اس سے بولا کہ ہاں اس پر تو ہے گنجائش، چل سکتا ہے. مگر اگر زندوں کی بات اگر صرف کی جائے تو زندوں پر بھی ہم لوگ بھی مددگار ہیں، اور سمجھ گئے، یا دوست ہیں جو بھی ہے. تو اب بتائیے آپ لوگ کیسے ان کو ہینڈل کریں گے، کیسے دفاع کریں گے؟ ہاں، وہ اصل میں تم وہ بھی منہج سلف سے محروم، تم بھی منہج سلف سے محروم. تو بتائیے اس کا جواب کیسے ہوگا؟ تو بھائی منہج سلف پیش کرو نا. کیا ہے منہج سلف؟ احمد رضا خان سلف میں آتے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں تو سلف پہلے آپ بتاؤ. بتائیے نا، کس کا عقیدہ ہے نہیں، کہ زندوں کے لیے کہا گیا ہے؟ پہلے بتائیے احمد رضا ہم خان کو سلف میں سلف سے آتے ہیں. ثابت کیجیے یار آپ. پہلے میں مجھے بتاؤں ان کو بھی بتائیے منہج احمد رضا سلف. خان سلف میں آتے ہیں، آپ نے ان کا حوالہ کیوں پیش کیا؟ منہج سلف میں بھی یہی عقیدہ ہے، جیسے آپ لوگ کا جو عقیدہ ہے تو ایک دم اور بات آپ لوگ اچھی کا جو کرتے کرتے ترجمہ ہے، بڑبڑانا کیوں شروع کر اس دیتے ہو؟ کو آپ سنیں. مجھے بات بتائیے، سلف الصالحین سلف میں احمد رضا صالحین خان سے آپ آتے ہیں ثابت کیا؟ کیجیے نا پھر اس کو یار. یہ میرے زندوں سوال کے کا لیے جواب ہے. دیجیے نا. اور سامنے والے کا احمد رضا اعتراض ہے، اس خان کو سلف مطمئن کر الصالحین میں سکتے آتے ہیں ہیں کیا؟ آپ.
मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अरे जवाब हमने दे, आपको अब जवाब देना है, तो हमें क्या जवाब देना है? अहमद रजा खान सलफुस सालिहीन में आते गैर हैं क्या? मुस्लिम को मुतमईन करने के लिए क्या जवाब दिया जाएगा इस पर? पहले सवाल का जवाब दो। अहमद रजा खान सलफुस सालिहीन में आते हैं क्या? तो सालिहीन में से नहीं है क्या? सालिहीन में से तो हाँ हम तो लोग बताओ ना मुझे, मानते हैं। सलफुस सालिहीन में से आते हैं क्या? सालिहीन में आते ही हैं। कौन बोला? हम बोल रहे हैं, हमारा ये अकीदा है। भाई आपकी तो कोई हैसियत नहीं है ना। अरे हमारे पूरे मसलक का ये अकीदा है। सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन यलूनहुम, मैं अल्लाह की पूछ नबी रहा से हमने हूँ कहा। कि इस आयत पर आप दिफा कैसे करेंगे? गैर मुस्लिम अरे को वो तो हम मुतमईन करेंगे कैसे ना, करेंगे? पहले इसका आपने जवाब जो दीजिए। गलती की आपके पास हो, जवाब नहीं है। आपने जो गलती की हो गैर मुस्लिम से तीसरे बात लोगों को करते मैंने टाइम, गलती तो आप तो आपकी उल्टा है, गैर कुरान पर मुस्लिम को इल्जाम आ रहा गलत है, रहनुमाई गलती कर आप दी लोग दीन कर रहे की। हैं। दीन की गलत कुरान रहनुमाई पर नहीं करना चाहिए, इल्जाम आ डरना रहा है चाहिए। कि ये जिंदों लोगों के लिए सिर्फ कोई है, इल्जाम तो नहीं आ जिंदे रहा। में तो गैर पहले मुस्लिम लोग भी आपने मददगार जो हैं, तरीक़ेकार और इख्तियार गैर किया मुस्लिम है लोग भी दोस्त वो हैं, एक दूसरे की तरीक़ेकार मदद गलत कर रहे है। हैं, तो बोलते हैं हमारा हमारा जिक्र क्यों नहीं है भाई कुरान में? पहले आपने कुरान में तरीक़ेकार इतने गलत क्यों लोगों का इख्तियार किया? इल्जाम तो आप लोगों को तो आप लोगों आराम की से ना वजह से लग परेशान रहा है। क्यों गैर कहते हैं? मुस्लिम आवाज आप लोगों की वजह से उठा रहे अरे तो हैं। परेशान क्यों गए? तो वो गैर आप मुस्लिम से भी लोग ऐसे ही बात इसका कर रहे थे। क्या कीजिए, बताइए कैसे किया जाएगा? गैर मुस्लिम से भी ऐसे ही बात कर रहे थे क्या? गैर मुस्लिम को आप कैसे अगर मुतमईन मेरे करेंगे वो ख्याल से किसी बताइए। बरेलवी से कर रहे होगे तुम, उसका नाम आपके गैर पास मुस्लिम रख दिए जवाब होगे। नहीं है, चलो रख दो। हो गया, हिजड़ों के पास वही जो रहता है, अरे इसलिए बात ही सलफ खत्म हो गया। चलो, सलफ में आते हैं क्या बात अहमद तो रजा मेरी खान? हिजड़े वाली है, रखो। इमरान देवबंदी साहब बात कर रहे हैं? जी इमरान देवबंदी साहब बात कर रहे हैं? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, 2 मिनट वक्त है क्या शेख आपके पास? जी हाँ जी 2 मिनट वक्त है क्या? हाँ बिल्कुल है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये सूरह मायदा जो है, कुरान है, जो सूरह मायदा की आयत नंबर 55, जी उसमें है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। बाद ने तर्जुमा किया कि तुम्हारा वली अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले हैं। बाद ने तर्जुमा किया कि तुम्हारा दोस्त अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले हैं। और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमा किया कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा मददगार अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले हैं। आप तारुफ लग रहा हूँ। जी, मैं अली खान बात कर रहा हूँ, कहाँ से? यूपी से, यूपी से किस जगह से? सिद्धार्थ नगर जिले से। जी सिद्धार्थ नगर जिले से मैं बात कर रहा हूँ। तो अब एक बुद्धिस्ट से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा भाई मैंने कहा इस हेलो हेलो जी जी हमने एक बुद्धिस्ट से बात किया तो जी हमने बयान किया कि भाई जो देवबंदी है और वहाबी हैं वो कहते हैं इंतकाल के बाद नहीं बल्कि ये जिंदों के लिए है कि अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले मदद करते हैं या दोस्त हैं। तो उसने कहा, एतराज़ किया, बोला भाई ये तो फिर हम लोगों का नाम क्यों इसमें नहीं है, क्योंकि हम लोग भी मददगार हैं, हम लोग भी दोस्त हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी मदद करते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, वगैरह वगैरह की बात की उसने, मतलब कपड़े पहना देते हैं, खाना खिला देते हैं, किसी गरीब की मदद कर देते हैं। तो हमको मददगार नहीं कहा जा रहा है। तो मतलब हमने जैसे देवबंद वालों का भी तर्जुमा और अकीदा पेश किया इस आयत के बारे में, और फिर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो तर्जुमा है और अकीदा पेश किया तो वो कह रहा है कि ये तो ठीक है। यानी हमने कहा कि चाहे जिंदा हो या इंतकाल शुदा हो, खासकर इंतकाल शुदा लोगों के लिए ये आयत है, हमारा अकीदा है। तो बोलता है फिर ठीक है। मैंने कहा कि उसमें तो मुसलमान भी मदद करते हैं लेकिन हर मुसलमान का भी जिक्र इसमें नहीं है, यानी जो इंतकाल शुदा हो जाते हैं खासकर उनके लिए है ये, औलिया अम्बिया। तो बोलते हैं फिर ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों का जो तर्जुमा और आप लोगों का जो अकीदा है इस आयत पर, उसको वो बातिल ठहराता है, कुरान पर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो अगर ये इंतकाल शुदा लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ जिंदों के लिए है, तो उस बुद्धिस्ट को क्या जवाब दिया जाएगा वो बता दीजिए। ठीक है, मैं आपसे भी थोड़ी देर बात करता हूँ। हाँ, मैं आपसे भी थोड़ी देर, आपका मेरे पास नंबर है, नाम भी लिखा हुआ। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी देर बात करूँगा। ठीक है, ठीक है, लगाइएगा फोन। हेलो जी हजरत, जी, आपने किस किस का तर्जुमा उठा के देखा? सभी का तर्जुमा देखा है, जैसे कई लोगों का। हाँ? सबका किसका नाम बताओ मुझे। हाँ? आप मुझे नाम तो बताइए, आपने कौन कौन सा तर्जुमा देखी? मैं अकीदा बयान किया हूँ।
जैसे शियों का भी देखा हमने और अपना भी देखा है, और हमारा अकीदा ये है, इस्लाम कि की सृष्टि में अल्लाह- देखा है। हाँ, हमारा अकीदा ये है, हमारा अपना ईमान वालों का उलमा हनाफ का अकीदा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी तमाम कब्रों में जिंदा हैं। उनके अलावा ना तो कोई कुरान की आयत, ना कोई ऐसा हदीस, अल्लाह के रसूल का कौल, कोई ऐसा साबित नहीं करता किसी बात को कि औलिया कराम को कब्र में जिंदा साबित करता हो। ना अल्लाह के रसूल, ना तो कुरान की कोई आयत ऐसी है, ना अल्लाह के रसूल का कोई कौल है। अरे बात इस पर नहीं हो रही है, बात कुरान की उस आयत पर हो रही है, और उस आयत के ताल्लुक से जो अकीदा है उस अकीदे पर बात हो रही है। इब्न कसीर का तर्जुमा तफसीर देख लो, उठा के उसका पढ़ लो, पता चल जाएगा आपको कुरान में क्या तो लिखा है। उसमें भी दो तीन तर्जुमा किया हुआ है। नहीं, उसमें 2-3 तर्जुमा नहीं है, इब्न कसीर के नाम से जो तर्जुमा है बिल्कुल सिंपल। तो आप औलिया अंबिया को जो है वो इंतकाल के बाद गैब में मददगार मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुश्किल हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। जो मतलब वो आयत जो है वो जिंदों के लिए है। देखिए एक बात सुनो, तो देखिए अब वो जिंदों के लिए है, तो वो बुद्धिस्ट का कहना है कि भाई जिंदों के लिए अगर है तो हम लोग भी मददगार, हमारे बारे में कुरान ने जिक्र क्यों नहीं किया? एक मिनट, इसका क्या जवाब देंगे? वही मेरा अकीदा वो है जो मैंने आपसे बता दिया। सहाबा का अकीदा जो था अल्लाह के रसूल का, और मैं हनफी मसलक का हूँ, मैं हनफी मसलक पर कॉल करता हूँ, उसके अलावा किसी आपने सहाबे कराम पर झूठा इल्जाम लगा दिया, झूठ। सहाबे कराम का ये अकीदा अगर रहा हो कि इंतकाल के बाद में गैब में मदद मांगना शिर्क हो जाएगा, वो पढ़ दीजिए। किस सहाबी ने ये बयान किया कि इंतकाल के बाद गैब में मदद मांगोगे तो शिर्क हो जाएगा? या आपने तो सहाबे कराम पर झूठ बोल दिया यार। मैंने आपसे कहा कि ये अकीदा सहाबा का भी नहीं था। और क्या? अगर आपके पास एक मिनट, देखिए आप कौन सा अकीदा सहाबा का नहीं था? एक मिनट मेरी बात तो सुन लो आप। हाँ। अगर आपके पास कोई पक्का प्रूफ सबूत हो तो आप मुझे पेश कर दीजिए, इस नंबर पे तो कुरान की ये आयत जो है, कुरान का पक्का सबूत ही तो मैं दे रहा हूँ। कुरान में है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। अगर मददगार ना समझा जाए तो बुद्धिस्ट का एतराज, तो फिर तो कुरान पर इल्जाम आ रहा है ना यार। सुन तो लो आप, इब्न कसीर का तर्जुमा पढ़ लीजिएगा आप, तफसीर मैंने पढ़ा हुआ है। उलमा बरेलवी भी, उलमा देवबंदी और हिंदुस्तान मैं पूछ रहा हूँ बुद्धिस्ट को क्या जवाब देना है? सुन तो लो मिनट, पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में इब्न कसीर के तर्जुमे को फॉलो करते हैं ज्यादातर लोग। कौन कहता है? बात खत्म। सुनिए, इस आयत कुरान की जो आयत है, अरे यार मैं पूछ रहा हूँ उस बुद्धिस्ट पर के इल्जाम का क्या जवाब देंगे जो इल्जाम लगा रहा है कि भाई अगर ये जिंदों के लिए सिर्फ कहा जा रहा है कुरान में, तो जिंदों पर तो हम लोग भी मदद कर रहे हैं, तो हमारा जिक्र क्यों नहीं है? कुरान ने इतनी लोगों को क्यों कहा? उसका जवाब दीजिए। चलिए इसका जवाब आपको मैं दे दूंगा रात को। रात में दोगे? ठीक है, चलो फिर रात को लगा लीजिए। इसे यही जवाब सिर्फ चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। हेलो, सलाम अलैकुम। आवाज जा रही है? हाँ आ रही है आवाज, फरमाइए। जी, एक आयत के बारे में समझना था। एक बुद्धिस्ट से मेरी बात हुई है। हाँ, जो कुरान की आयत है, सूरह माइदा की आयत नंबर 55, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। तो हमने इस आयत पर अकीदा पेश किया। जैसे मैं किसी फिरके से लेकर यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सबका अकीदा पेश किया इस आयत के ताल्लुक से। हाँ, कि बाज़ लोगों ने का तर्जुमा है कि तुम्हारा मददगार अल्लाह है और रसूल है और ईमान वाले हैं। बाज़ लोगों का तर्जुमा है कि तुम्हारा वली अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले हैं। और बाज़ लोगों का तर्जुमा है कि और अकीदा है कि तुम्हारा दोस्त अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले हैं। तो उसने एतराज किया कि भाई मददगार तो हम लोग भी हैं। एक लहजा, हेलो, एक लहजा, मैं थोड़ा आयत खोल लेता हूँ। हाँ जी जी आयत जो है आपकी बात समझ लेता हूँ जी। इंशाअल्लाह बात सूरह माइदा आयत नंबर 55। सूरह माइदा, हाँ, आयत नंबर 55।
हाँ चलिए जी। हाँ, तो उन्होंने मतलब ये कहा, अब हमने इस पर तर्जुमे पर जो है वो अकीदा भी पेश कर दिया कि कुछ लोग हैं जो देवबंदी अपने आप को कहते हैं और वहाबी कहते हैं। हाँ। तो उनका कहना है कि ये जिंदों के लिए है, कि जो लोग जिंदा हैं, औलिया और अंबिया, उनके लिए है। तो उसका कहना है कि भाई जिंदा तो हम लोग भी हैं और हम भी किसी के दोस्त हैं, हम भी किसी की मदद करते हैं, तो हमारा जिक्र क्यों नहीं है इसमें? इसमें तीन ही कैटेगरी क्यों बताई जा रही है? हालांकि हम लोग भी किसी को कपड़ा पहना देते हैं और किसी को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, मददगार हम भी मदद करते हैं एक दूसरे का। तो और मुसलमानों का भी मदद करते हैं और किए भी हैं। अब जब मैंने आला हजरत का तर्जुमा पेश किया कि भाई उनका कहना है कि मददगार हैं, यानी ये कभी भी मदद करते हैं, चाहे इंतकाल कर जाए या जिंदा रहें, तो इस पर वो मुतमईन हो गया। फिर बोले अगर इस तरह से इसमें इसका मतलब है इस आयत का, तो बोले फिर तो ठीक है। तो अब ये मैं कह रहा हूँ, जैसे जो देवबंदी लोग हैं या अहले हदीस लोग हैं जो अकीदा इस पर बनाए हुए हैं, तो इस बुद्धिस्ट का कैसे जवाब दिया जाएगा? बुद्धिस्ट से ये कहना है कि अभी दुनिया में जो दीन अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है वो इस्लाम ही है। हाँ, आप पसंदीदा है इस्लाम फाइनल का पता चलेगा मरने के बाद ही। हाँ, आपको दुनिया में कोई उस पर असर मुरतब होने वाला नहीं है। मरने के बाद जो है, अगर आपको जो स्वर्ग में जाना है तो इस्लाम के मुताबिक मरना होगा। नरक में जाना है तो आप बुद्धिस्ट रहो या जैन रहो, चाहे ब्राह्मण रहो, चाहे यहूदी रहो, चाहे पारसी रहो, चाहे लिंगायत रहो, चाहे कुछ भी रहो जी। अगर आप एक खुदा और खुदा के पैगंबर को नहीं मानेंगे तो मरने के बाद नरक ही आपका ठिकाना है। दुनिया में जितना अच्छा आप काम करेंगे दुनिया में ही उसकी भलाई आपको मिल जाएगी जी। कुरान में साफ साफ ऐलान कर दिया कि जो भी बंदा अच्छा करेगा उसे दुनिया ही में दे देंगे, आखिरत में उसे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय मुसलमानों जी। मुसलमान के लिए दुनिया में भी अच्छा ही मिलेगी, आखिरत में भी अच्छा ही मिलेगी जी। और दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ जी इंसानों के लिए नजात, इंसानों के लिए कामयाबी का रास्ता सिर्फ इस्लाम है। जी। ये बुद्धिस्ट को बताना है। लेकिन वो बात कुछ और कर रहा है, जवाब कुछ और दे रहा है हजरत, क्योंकि वो कह रहा है कि मददगार हम भी है, तो हमारा जिक्र क्यों नहीं है इसमें? आप मुसलमान थोड़ी है, आप अल्लाह के दोस्त कहाँ हुए? अल्लाह को तो एक नहीं मानते, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद उसमें सुन लीजिए, अल्लाह के दोस्त नहीं, अल्लाह दोस्त है कह रहा है। अल्लाह दोस्त है और रसूल दोस्त हैं और ईमान वाले दोस्त हैं। तो दोस्त भी अभी हमने बताया था, तो बोले कि दोस्त वो कौन सा दोस्त? दोस्त कैसा होता है? दोस्त जिससे फायदा पहुंचता है, जो हर उसमें मुश्किल में जो काम आता है, मददगार होता है। वो भी इस तरह बात किया। तो उनका कहना है कि मददगार हम भी हैं। अगर ये जिंदों के लिए अगर इसमें जिक्र है तो मददगार हम भी है, तो हमारा जिक्र इसमें क्यों नहीं है? एक चीज बताइए, बर्मा जो है 6-10 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया, 6 लाख मुसलमान बेघर हो गए, उनको मारने वाले कौन थे? जी। बर्मा में अभी जो है 4-5 साल पहले का हिस्सा है जी। 10 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया, 6 लाख मुसलमानों को निकाला गया, सिर्फ क्योंकि उनके जमीन जहाँ पे मुसलमान रहते थे अराकान में, जी। उन जमीनों में जो खजाने थे, जी। बस वहाँ खुदाई करके वो दौलत लूटने के लिए मुसलमानों को जो है वहां से निकाला गया। लेकिन मुसलमानों को अगर दूसरी जमीन देते तो वहां जाकर बस जाते। मगर बर्मा के मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि तुम बांग्लादेश से घुसपैठ किए हो, जी। सबको निकाल दिए, कितनों को कत्ल कर दिए, पूरी तरीके समंदर में डूब के मर गए कितने लोग बांग्लादेश के। और बांग्लादेश वाले भी नहीं लिए उनको, मुसलमान कंट्री होने के बावजूद उन मुसलमानों को नहीं लिया। तो ये मारने वाले थे, बुद्धिस्ट ही तो थे। हाँ, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उसका दोस्त है। ये नहीं कह रहा है अल्लाह ताला कि तुम मेरे दोस्त हो। इसमें अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह उसका दोस्त है, रसूल उसके दोस्त हैं और मोमिनीन जो ईमान वाले हैं वो लोग दोस्त हैं। हाँ, तो मुसलमानों के तीन ही लोग हो सकते हैं। सुन लीजिए,
तो अब वो कह रहा है कि दोस्त तो भाई हम भी हैं बहुत सारे लोगों के, बालिग जिसने कत्ल किया उसको छोड़ो, लेकिन ये इंडिया में नहीं, सवाल कुछ और है हजरत। नहीं, आपका सवाल जो है ये है कि मुसलमानों का दोस्त अल्लाह है, मुसलमानों का दोस्त रसूल है, मुसलमानों के दोस्त मुसलमान है। वली कुल तुम्हारा दोस्त का मतलब ये है कि तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा दोस्त अल्लाह है या उसका रसूल है या उसके मुसलमान है। हाँ, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि हम भी दोस्त बहुत सारे जिन्होंने कत्ल किया हमारे जो हम नहीं ना वैसे। आप हमारे जो दोस्त हैं मसलिहत के लिए दोस्त हैं। तो फिर ये भी तो वो भी कह सकता है कि तमाम ऐसे लोग हैं जैसे पाकिस्तान में एक दूसरे का खून बहाते हैं, वो लोग भी मुसलमान हैं, तो उनका जिक्र इसमें क्यों है? खून तो वो लोग भी बहा रहे हैं एक दूसरे का। जी, मुसलमान इलाकों में तमाम, जैसे कि अभी अफगानिस्तान या तमाम मुल्क में है कि लोग मुसलमान एक दूसरे को, वो अगर ऐसा कहेगा तब क्या जवाब देंगे? हाँ जी जी, वहाँ पे देखिए उनका जिक्र क्यों इसमें? हाँ जी, ये एक तफसीली बहस सही है जी। इसमें जो है आगे जो है युकीमुन सलात व युतून ज़कात व हुम राकिऊन, ये 3 क्वालिटी बताए हैं मुसलमानों के। हाँ, अगर आपका कोई दोस्त मुसलमान है तो उसके अंदर ये 3 सिफात है। हाँ, तो ये जो 3 सिफात है उन 3 सिफात वालों के दोस्त अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले हैं। नहीं, तुम्हारे मुसलमानों के जो दोस्त होंगे वो दोस्त वही मुसलमान होंगे जो नमाजें पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं, रुकू करते हैं। पाकिस्तान में अगर मुसलमान को मार रहा है, अफगानिस्तान में मुसलमान को मार रहा है, सऊदी अरब में 10,000 उलमा को उसने जेल में डाल के रखा है, मुल्क शाम में सीरिया में लाखों मुसलमानों ने बमबारी की है, ईरान में मुसलमानों को मार रहे हैं, इराक में मुसलमानों को मार रहे हैं, तुनिस में मुसलमान को मार रहे हैं। इसका मतलब है कि वो लोग नमाज नहीं पढ़ते, वो लोग ज़कात अदा करने वाले नहीं, वो लोग रुकू करने वाले नहीं, बल्कि वो लोग जो यहूदियों के और इस्लाम दुश्मन लोगों के दोस्त हैं। नहीं, लेकिन इससे वो मुतमईन नहीं हो सकता है आदमी, क्योंकि सुन लीजिए, सिर्फ एक ही जवाब है कि आप अगर हमारे दोस्त हैं तो आपकी मसलियत हमारी मसलियत इंडिया के अंदर जुड़ी हुई है, क्योंकि आपके ऊपर भी बरहमन जुल्म कर रहा है, हम पर भी बरहमन जुल्म कर रहा है, हम दोनों मजलूम आपस में भाई है, इसलिए हम दोनों दोस्त हो गए हैं। लेकिन जब इख्तिदार में बुद्धिस्ट आ जाएगा तो जैसा इख्तिदार में बुद्धिस्ट आके बर्मा में मारा, तो इस तरह तो मुसलमान एक दूसरे को, सुन लीजिए, जैसे अहले हदीस के लोग हैं कि कम से कम 700 सहाबा के जो मज़ारात हैं उनको बमों से उड़ाया और तमाम लोगों को शहीद करवा दिया। पाकिस्तान में भी बम फोड़ा। जो अहले हदीस के लोग और देवबंद के लोग हैं मज़ारात पे बम लगा देते हैं, तो फिर इनका जिक्र क्यों है कि इनका दोस्त अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले हैं और ये कत्ल करें तो इनका नहीं है? हाँ, तो ये एक अलग मसला है। ये जो सऊदी अरब में मज़ारों को उड़ाया गया, लोगों को मारा गया, तो लोगों को मारा गया तो उसकी वजह अलग है, मज़ार उड़ाए गए तो उसकी वजह अलग है, वो अलग वजह है। तो इनका मददगार अल्लाह और उसका रसूल दोस्त ईमान वाले भी हैं, और बुद्धिस्ट करे तो उनका नहीं है। ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। नहीं, एक चीज देखिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली खान है। आप कहाँ रहते हैं? मैं यूपी सिद्धार्थ नगर में। अच्छा, अभी सिद्धार्थ नगर ही में है आप? जी। अच्छा, तो देखिए अली भाई, अली भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है? ये कलीमा जो पढ़ेगा वही मुसलमान है, वही होगा। बस इस कलीमे को जो समझेगा वो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक समझ के अमल करेगा, जुल्म किसी पर नहीं करेगा। लेकिन वो अलग चीज आप बता रहे हैं, उसका हाँ, ये टॉपिक अलग है। अब बुद्धिस्ट के लिए आप यही जवाब देंगे कि बुद्धिस्ट हमारे दोस्त हैं, तो वो क्यों दोस्त हैं? जिंदों के लिए कहना है कि अकीदा उस पर ये चीज है कि जिंदा है मर्दा है अलग चीज है। इस अकीदे में जो है, इस आयत में जो है, जिंदा भी मुराद ले सकते हैं, मुर्दे भी मुराद ले सकते हैं, और जो है जिंदा भी मुराद ले लो या मुर्दा मुराद ले लो, कोई उसमें ये नहीं है, क्योंकि औलिया अल्लाह के मोजज़ात जो हैं वो मरने के बाद भी जारी रहते हैं।
हाँ, तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जब आला हजरत का तर्जुमा हमने पेश किया कि इससे मुराद और इससे अकीदा हमारा ये है कि जो ईमान वाले हैं, ठीक है, जो ईमान वाले हैं चाहे वो इंतकाल कर जाएं या जिंदा हो, वो मददगार भी है, दोस्त भी है, हमेशा के लिए उनसे मदद मांगना जायज है। इसलिए आप लोगों का नहीं, मदद मांगना जायज है ये नहीं है, मदद मांगने का नहीं है। सूरह फातिहा में आप पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं जी। तो मदद खुदा ही से तलब करेंगे। अलबत्ता बुजुर्गों का सहारा, बुजुर्गों का वसीला आप ले सकते हैं कि अल्लाह ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी अलैहिर्रहमा के सदक़े में मेरी दुआ कबूल फरमा, ऐसा कह सकते हैं। आप जो है मददगार है इसलिए ख्वाजा मेरी मदद करेंगे, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरी मदद करेंगे, तो ये जो खुदा की जो मदद करने की जो सिफत है उसमें इनको शरीक करना हो जाएगा। खुदा के साथ शिर्क जो हराम है। अच्छा सुन लीजिए, एक नई बात आपने अभी बता दी है। हाँ जी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। हाँ, तो इसकी तफसीर में किसी ने लिखा है कि मदद मांगने को शिर्क कहा जा रहा है, अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगने को शिर्क कहा जा रहा है या नहीं? आयत में तो तर्जुमा तो वही है ना, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। जब तुझी का जो उस अरबी में जो हसर कहते हैं, हसर हा स्वाद रा, हसर का मतलब भी होता है कि उसमें कोई दूसरा नहीं है, तुझी का मतलब होता है खुदा ही है। अच्छा तो और सूरह कुल हुवल्लाह वहद है ना, सूरह कुल हुवल्लाह वहद, अच्छा, कुल हुवल्लाह वहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद से सारे मुफस्सिरीन आला हजरत भी की तफसीर आप पढ़ लीजिए, उसमें वही लिखे हैं कि अल्लाह का कोई जो है हमसर नहीं है, अल्लाह के कोई उसे इन्फ्लुएंस डाल के उस पर कोई पावर डालने वाला नहीं है, उस पर कोई अल्लाह पे जो है कोई इन्फ्लुएंस डाल के अल्लाह से कोई काम नहीं करवा सकता। अच्छा, सारे नबी सारे वली सब अल्लाह के मोहताज हैं। अच्छा एक मिनट शेख साहब, ठीक है, जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करें और तुझसे ही मदद तलब करते हैं, तो हम लोग जो जिंदों से मदद तलब करते हैं तो असल में ये कहते हैं जैसे जिंदे लोग हैं उनसे भी तो हम मदद तलब करते हैं, तो उनसे मदद वो अलग चीज है। मिसाल मेरे पास मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, आपसे मैंने 1000 रुपए मांग लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैंने खुदा बना लिया। हाँ, तो यही चीज मैं कह ये रहा हूँ, अलग चीज है, ये अलग चीज है, इससे अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मामला है, अकीदे से ताल्लुक नहीं है इससे। अच्छा, जिंदा है अगर कोई आदमी और उससे मैं मदद तलब करूं, 1000 रुपए का मदद तलब करूं और उसको समझूं ये जाती तौर पर दे रहा है, मैं इसको खुदा समझकर मदद मांग रहा हूं, मैं उसको खुदा समझ रहा हूं, तो ये कैसा हो जाएगा, है ना? ये कुफर हो जाएगा। ये मैं उसको खुदा समझकर अगर कोई शख्स मांगता हो, कोई भी, तो कोई भी अगर उसको खुदा समझ के मांग रहा है किसी वली से, किसी बुजुर्ग से, तो वो काफिर हो जाएगा, खुदा के साथ शरीक करने के बराबर हो जाएगा वो। अच्छा, सिर्फ मदद मांगेगा तो शरीक नहीं होगा ना? नहीं, मदद तो हर इंसान की जरूरत है। अच्छा, तो फिर इंतकाल के बाद अगर मदद मांगेगा तो शिर्क हो जाएगा? हाँ, अगर उसका अकीदा अगर इस तरीके से हो जैसे आपने बताया कि इसमें जो है मदद मांगना चाहिए, अकीदा हमने इस आयत से बना लिया कि खुदा के अलावा ये अल्लाह वाले भी जो हमारे मददगार है, इससे मदद तलब करना चाहिए, इस तरीके का अकीदा अगर बना रहे हैं, खुदा की सिफत में उसको भी शरीक कर रहे हैं उस वली को, तो ये शिर्क होगा। सुन लीजिए, अगर आप जो है वसीले के तौर पर, जैसा हजरत टीपू सुल्तान के बारे में आता है, सुनिए हजरत, एक मिनट, वो बात बहुत लंबी हो जाएगी। ये इय्याका नअबुदु वाला बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, इसको क्लियर कर दीजिए ना। जैसे कि किसी ने आज के 1450 साल के अंदर किसी ने भी इस आयत का जो ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से ये मतलब बयान किया हो तो जरा बता दीजिए जो आपने अभी बताया। कौन सा? कि खुदा के अलावा से मदद नहीं करना बिल्कुल। हाँ, इंतकाल के बाद में अगर मदद तलब करोगे तो हो जाएगा। क्या तर्जुमा किया इसमें? शाह अब्दुल हक मोहसिन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को आप मानते ही हैं? नहीं, हम सब लोगों को मानते हैं, जो भी सही तर्जुमा करेगा हम सबको मानते हैं। हाँ, तो अब उन्होंने लिखा असातुल लमात जिल्द नंबर 1 सफा नंबर बाब ज़ियारत कबूर, उन्होंने एक बाब बांधा है, तो उसमें वो लिखते हैं कि मैं और हमारे शेख का ये कहना है और तमाम जो है बुजुर्गाने दीन का कहना है कि जिंदों से ज्यादा कवि है कि इंतकाल शुदा औलिया अंबिया से मदद तलब की जाए।
और आपने जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ा, सुन लीजिए 1 मिनट, आपने जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो शाह वलीउल्लाह शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने तफसीर फतहुल अजीज में इसी की तफसीर करते हुए उन्होंने लिखा है कि औलिया अंबिया से मदद तलब करना इंतकाल के बाद जायज है, अगर खुदा समझकर मदद तलब कर रहा है तो वो शिरक है, और बिल्कुल सही है ना, बुतों से मदद मांग रहा है तो वो हराम है। यानी खुदा नहीं समझ रहा है तो हराम है बुतों से, और औलिया अंबिया से जायज है, अगर खुदा समझकर किसी से भी मदद मांग रहा है तो वो शिरक है। हाँ सही है ना, बिल्कुल। तो हाँ, तो आपकी बात तो अपोजिट है इसके, कि अगर इंतकाल के बाद में वो जायज समझ रहे हैं, दोनों मुहद्दिसीन जो है उसको जायज कह रहे हैं, आप क्लियर कर दिए ना जी। अगर खुदा समझ के मांग रहे हैं तो कुफ्र है, बता रहे हैं ना। मैं इसीलिए हजरत टीपू सुल्तान की वालिदा का हवाला दे रहा था जी। हजरत टीपू सुल्तान के वालिदा का मसला ऐसे ही है। शेख जलालुद्दीन अकबर जो हमारे ग्रेट ऑफ द किंग इंडिया थे, उनकी भी औलाद नहीं थी, तो उन्होंने जाके जो है हजरत ख्वाजा सलीम चिश्ती से उन्होंने जो है दुआ करवाई थी जी। फिर अपने बच्चे का नाम भी शहजादा सलीम रखा उन्होंने जी। हजरत टीपू सुल्तान की भी वालिदा को औलाद नहीं थी, तो वो भी जाके हजरत टीपू मस्तान की जो दरगाह आरकाट में है तमिलनाडु में, मैं गया हूँ कई बार उस दरगाह में जी, वहां पे जाके उन्होंने जो है दुआ मांगी थी वो वली के सहारे से। अल्लाह ने उनको फिर क्या फतेह अली लड़का दिया, तो फतेह अली टीपू बन गया वो। फिर जब खिलाफत से उन्हें सनद मिली तो फिर वो सुल्तान कहलाए। जी। अच्छा ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वलियों के खबरों के पास जाकर आप दुआ कीजिए, सब कीजिए, अल्लाह से मांगिए, उसमें कोई मसला नहीं है। सुनिए, मैं ये अगर आप खुदा समझ के वलियों से ये कर रहे हैं, और वैसी भी है और भी बात है अली भाई कि अवाम जो होती है ना, अवाम उन्नास जो होती है वो अकीदे और आम चीजों में फर्क नहीं करती। मैं एक मर्तबा जो है यहाँ पे हमारे कर्नाटक में एक दरगाह के पास गया था, चिंतामणि में अम्मा जान बाबा जान के नाम से दरगाह है। वहां पे एक नौजवान जो है लिड़ पड़ रहा था और अम्मा जान मुझे ये कर दो, बाबा जान मुझे ये कर दो, अम्मा जान मुझे ये कर दो, बाबा जान मुझे ये कर दो, अम्मा जान ये कर दो। इतने उसने मुताले में आधा घंटा से जो है लिड़ रहा है बिल्कुल लेटे हुए, इधर से उधर से इधर जो है वो दरगाह के बिल्कुल खबर के बिल्कुल पड़ोस में जो है पुकार के बोल रहा अम्मा जान मुझे ऐसा है ये कर दो, अम्मा जान वैसा है, बिल्कुल क्या है बोलते हैं वो किसी की परवाह नहीं है, बिल्कुल खुदा समझ के उसी को पुकारता जा रहा है। तो अवाम उन्नास में जो है इस मसले में जो है जहालत पाई जाती है। हाँ सुन लीजिए, आपने उससे पूछा था कि वो खुदा समझ रहा है? मैंने नहीं पूछा, लेकिन जब वो जब इस तरीके से मांग रहा है तो ये तो खुदा से मांगना चाहिए उसको। इस तरीके से गिड़गिड़ा कर किसी वली से इस तरीके से मांगने में काफिरीन समझेंगे कि ये तो खुदा को एक मानते हैं, लेकिन खुदा की एक होने में उसके अता करने में इसको शक है, ये खबर से मांग रहा है। सुन लीजिए, काफिरीन क्या समझ रहे हैं? काफिरीन तो पूरे कुरान को गलत समझ रहे हैं, उनके समझने से नहीं होगा। शरीयत क्या हुक्म लगाती है कि किसी से मदद मांगने को पूरे कुरान में या हदीस में कहीं पर भी अगर एक भी हदीस हो हजरत या एक भी आयत हो तो ऐसा। अच्छा एक काम कीजिए अली भाई, बात जो है लंबी हो जाएगी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरे से बहस कर रहे हैं या कुछ मालूमात कर रहे हैं? ये मैं चाहता हूँ अवाम की इस्लाह हो, हमारी भी इस्लाह हो। इसमें बहुत तो एक काम कीजिए, आपने जो हवाले दिए अशातुल लम्मात फतुल अजीज, 2 हवाले आपने दिए हैं, अगर आपके पास उसका स्क्रीनशॉट रहा तो जरा व्हाट्सएप कर दीजिए। जी मेरे पास मौजूद है, मैं भेज दूंगा। हाँ व्हाट्सएप कर दीजिए। और अगर मेरा तो कोई दावा नहीं है, आप कोई अगर दावा हम पर देना चाहते हैं वो दावा भी लिख दीजिए। जी कि देवबंदी काफिर हैं, इसलिए काफिर हैं कि ये वलियों से मदद मांगना हराम समझते हैं, फला ने ऐसा लिखा है, वो भी डाल दीजिए हवाले। हाँ ठीक है, उस बिना हाँ तो अगर अहले हदीस ऐसा कर रहे हैं तो फला की वजह से वो भी काफिर हैं, इसलिए वो भी डाल दीजिए। आला हजरत के पास तो कुफर की गन मशीन बहुत तेज चलती है। नहीं आला हजरत ने पहले नहीं लगाया है, आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं उन पे? नहीं आला हजरत ने तो सबको काफिर बना दिया है। आपको चाहे तो उनके तमाम फतेह में आपको कुफर के भेज देता हूँ। अरे यार सुन लीजिए हजरत, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। आला हजरत ने काफिर बना दिया है ये आप कह रहे हैं। आप एक ऐसा बात बताइए, पेश कर दीजिए आला हजरत का कि जिसकी वजह से जो अकीदा पाए जाने की वजह से उनकी किताबों से सीखने से कोई शख्स काफिर हो गया हो।
एक सिर्फ एक बात बता दीजिए उनका, इतनी किताबें हैं क्या उनकी, समझ में उसमें नहीं से आई सिर्फ एक बात बात, आला हजरत का? आला हजरत के तालीम से किसी ने उनकी किताबों को पढ़कर कुफ्र इख्तियार किया हो, काफिर बन गया हो, ऐसा एक इबारत उनका पेश कर दीजिए। अच्छा, काफिर बना हो? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ उनके तालीमात से काफिर लोग बन रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आला हजरत के पास कुफर की गति जिसमें उन्होंने जो है तकरीबन 90% मुसलमानों को काफिर करार दे दिया। नहीं नहीं, लेकिन आप लोग पूरे उम्मते मोहम्मदिया को काफिर कह रहे हैं, मुशरिक कह रहे हैं कि जो मज़ारों से मदद नहीं नहीं, उम्मत मोहम्मदिया को नहीं, उम्मत मोहम्मदिया को नहीं, जो इस तरीके का अकीदा रखते हैं तो आप उसको साबित कर दीजिए। और हमने उनको काफिर भी नहीं कहा। काफिर तो हमारे किसी फतवे में आपको काफिर का लफ्ज मिलेगा भी नहीं कि अभी हमने फला फला काफिर दे दिया आला हजरत के गनमशीन की तरह, ऐसा नहीं है। अभी आपने आप हमारे फतावे आप देखेंगे तो उन फतावों में ऐसा करना कुफ्र है, ऐसा करना कुफ्र है, ऐसा करना कुफ्र है, ऐसा लिखे हैं। ऐसा करना शिर्क है, ऐसा करना शिर्क है, ऐसा लिखा हुआ है। फजाइल अमाल पढ़े, लेकिन आला हजरत काफिर है, आला हजरत का वो खलीफा नईम अहमद यार खान साहब वो काफिर है, फला काफिर है, फला काफिर है, ऐसा किसी ने नहीं लिखा है। आप देख लीजिए। जो डिमांड कर रहे हैं हम हजरत, आप नहीं दे रहे हैं उसी। आपने कहा आला हजरत जो है उन्होंने काफिर बना दिया है, बनाना एक और है और बताना और है। आला हजरत ने बताया है ये चीज है जो कुफ्र है, और पहले उलमाए अरब ने लगाया फतवा, फिर 500 उलमा हिंदुस्तान। अच्छा, एक काम कीजिए हजरत, आला हजरत ने किस किसको काफिर किया है, मैं आपको उसके हवाले इंशाल्लाह आप ये हवाले भेज दीजिए। किया किसी को नहीं है, बताया है कुरान और हदीस की रोशनी में, और पहले उलमाए अरब ने लगाया है फतवा। उनको लगाना होता तो अरब जाते ही नहीं, वो तो यहीं से लगा देते, लेकिन पहले तहकीक किया, पूरी दुनिया में वो घूमे। अच्छा, वो जो किताब है अरब की, उसके वहां पे जो है फिर जाके उलमा अरब ने फिर उस पर रुजू किया ना? नहीं तो आला हजरत तो जाके ये वो बोल बोल के सब ले लिए। बात वहीं पे मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने जाके जब समझाया तो फिर जो तमाम उलमा ने रुजू किया, फिर उनके दूसरे फतवे उनकी किताब में छपे हुए हैं और कहा कि अहमद रजा साहब ने हमें उल्टा सीधा समझा कि हम ये वो करवा के ले लिया था, वो लिखा है उन्होंने। नहीं हुसामुल हरमैन नाम किताब का है, आप देख सकते हैं। हुसामुल हरमैन में जो बातें लिखी हुई हैं वो बातें आपकी किताबों में पाई जाती हैं, लेकिन जो किताबें अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद में है वो चीज नहीं है, उसमें काट छाट। हाँ भाई, अहमद रजा साहब का स्टाइल कैसा था कि ऊपर की इबारत नीचे की इबारत छोड़कर एक इबारत पकड़ेंगे और उस पर जो है लगा देंगे। इस तरीके से उन्होंने जो है पूरी बात ऊपर से नीचे तक समझे बगैर या जानबूझ के उन्होंने जो है उस दौर में जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो उलमाए देवबंद खड़े हुए थे, उस तहरीक को ठंडा करने के लिए उन्होंने मुसलमानों में जो 2 फिरके बना दिया अहमद रजा साहब ने। और उन्होंने एक किताब ये भी लिखी कि इंडिया जो है दारुल इस्लाम है, अंग्रेज जो है इस पर राज करते हैं। झूठ न बोले आप। हिंदुस्तान दारुल इस्लाम उन्होंने लिखा है ना। आपके अकाबिरों ने लिखा अंग्रेज की हुकूमत हमारे लिए रहमत है, कहाँ आप जा रहे हैं भागे? रहमत है लिखा है तो रहमत है लिखा है रहमत, तो लेकिन फतवा क्या उसके खिलाफ खड़ा होगा? बताइए आप बात कहाँ से कहाँ ले गए। मैं बुद्धिस्ट की बात कर रहा था। जेल में गए ना, शेखुलिन जेल में गए, महमूद हसन देवबंदी जेल में गए, हुसैन मदनी जेल में गए, रशीद अहमद गंगोई जेल में गए। अहमद रजा साहब गए क्या जेल में? अंग्रेजों ने कभी उनको छेड़ा है? किसको? अहमद रजा साहब को। अहमद रजा साहब अंग्रेजों के जमाने में थे? फिर कब थे? अंग्रेजों से पहले थे क्या? अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले फतवा किसने दिया हिंदुस्तान में? किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। किसने दिया? हाँ, किसने दिया है? शाह अब्दुल अजीज ने दिया। हाँ, उसके बाद तो पूरे उलमा देते आए हैं, लेकिन अहमद रजा साहब ने आला हजरत ने दिया। आला हजरत ने दिया है। आला हजरत ने तो ये कहा कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, अंग्रेजों के कब्जे के बाद उन्होंने ऐलान किया। हाँ, तो अंग्रेजों के कब्जे के बाद में ना, आजादी के बाद में आजादी के पहले ही मर गए थे ना अहमद रजा साहब। नहीं, उनकी वफात कब हुई? आजादी के बाद दारुस्सलाम उसको लिखा गया है। अरे नहीं भाई, अहमद रजा साहब कब इंतकाल हुए?
सुनो सुनो, अंग्रेजों की हुकूमत को कहीं भी हलाल लिखा हो तो वो दिखा दीजिए आप। एलामुल इलाम बिअन्ना हिंदुस्तान दारुल इस्लाम कब लिखे है किताब वो? फोन चालू है, आप स्क्रीन भेजिए। ये जो अहमद रजा साहब कब इंतखाब हुए हैं, आजादी के बाद मरे हैं क्या? आप फ्री हो जाए फिर बात करता हूँ। आप देखिए टॉपिक को दूसरी तरफ लेकर चले गए, मैं कुछ और नहीं आप इधर उधर से जाते हुए। अच्छा, ये जो स्क्रीनशॉट जो बताए थे औलिया अल्लाह के, वो मैं हाँ भेज रहा हूँ। ठीक है, हाँ भेज देता हूँ। ठीक है, आपका नाम क्या है? उजैर है नाम मेरा। अच्छा, उजैर साहब, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, हमारे ज़बान से एक बात इसमें निकली है कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ के हुकूमत के बाद में उन्होंने फतवा दिया है, बल्कि ऐसा नहीं है, अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौरान ही दिया है, जब ठीक है ना, कि ये दारुस्सलाम है। देखिए, दारुस्सलाम और दारुल हर्ब, ये दो किस्म का फतवा लगता है। दारुल हर्ब यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़, ख़ासकर मुसलमान को ख़त्म करने की कोशिश की जाए या इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जाए तो दारुल हर्ब का फतवा लगता है। यानी आपके लिए जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है, या फिर आप मुल्क छोड़ लें या फिर आप लड़ें, ये हो गया। और दारुस्सलाम का मतलब है कि अगर आप पर कोई जुल्म करता है तो आप लड़ भी सकते हैं, आप लड़ें, बिल्कुल लड़ सकते हैं। शरीयत इसकी इजाज़त देती है कि आप पर कोई जुल्म करे तो बिल्कुल आपको लड़ना ही है, ठीक है। और दारुस्सलाम का मतलब ये नहीं कि आप नहीं लड़ सकते जंग, समझ गए, इस किस्म का। और दारुस्सलाम का अगर मतलब यही अगर लिया होता तो हमारे तमाम अकाबिरों ने जंग लड़ी है, तमाम मुसलमानों ने जंग लड़ी है और सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, आप लोगों को मालूम होगा इतिहास, समझ रहे हैं। तो दारुस्सलाम का मतलब ये भी है कि आप जंग नहीं लड़ सकते, ऐसा नहीं है, जंग आपको लड़ना है। यहाँ पर जो अंग्रेज़ जो लोग थे वो सिर्फ इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले को नहीं टारगेट किए थे, बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों को, ख्वाह वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सबको वो टारगेट किए थे, समझ गए। तो उनके ख़िलाफ़ जंग करना ज़रूरी था और जंग किया भी गया, समझ गए। तो दारुस्सलाम का गलत मतलब ये लोग निकालते हैं, हालांकि इनके मौलवियों ने अपनी किताब में दारुल हर्ब का फतवा देकर और जंग नहीं लड़ा समझ गए। तो दारुल हर्ब का फतवा इनके मौलवियों ने दिया, और अंग्रेज़ की हुकूमत जो है वो रहमत है, ये भी उनके ही मौलवियों ने फतवा दिया। तो ये दोगले किस्म का फतवा उनके घर में ही मौजूद है, समझ रहे हैं। वीडियो को सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।